Google developer expert of Flutter and Dart, and he writes really cool newsletters. I think you all should subscribe if you like reading. He also makes YouTube videos, not the reel kind of one, but the longer one, so that you can watch it while you're working or while you're having your meal and you'll learn something. Alright, Burhan, you ready? Yep. Thank you so much. Turn on your mic. It's on. Do we have the recording started? Congratulations. Thank you so much. Try to stay in middle. I'll change. अभी सनी अच्छा को आपके बता रहा है. Try to stay in middle. That's थोड़ा सा टेबल से आगे. Okay, यहाँ पर. मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है. सनी बुलान को पढ़ा रहा था. Good. Ready? Alright. Congratulations once again. Congratulations to Flutter Sabatiya Burhan. Thank you for coming. Thank you. इसमें बोलना है? Okay. हाँ. Okay, so hello everyone. My name is Burhanuddin Rashid, and I am a software engineer and also a Google developer expert in Dart and Flutter. This is usually about me. This is just my blog, Burhan52.com, and from Flutter related, it's widgettrick.com, and also I run classes on weekend called effectiveflutterdev.com. And I want to start with first of all congratulating Poonam and Flutter Ahmedabad team and Sunny on their 50th Flutter event. And congratulations! I just wanted to do this for a really long time, so I'm going to do it now. So just give me a second. Yeah. So I just wanted to do this. Honestly, I was just looking for an event where I can do this. So yeah, congratulations. So this talk is basically kind of into two parts. First is kind of a motivation. And by motivation, I don't mean this kind of motivation कि सुबह उठ के रोज उठना ये बकवास है, उतना ज़्यादा effective नहीं है. I'm talking about a motivation, something like this, where you build something meaningful, you contribute to our country, you contribute to your company, which has been used by many people and it affects people's life. So this is the motivation I'm talking about, not the other one. And then there's a motivation, and also खाली motivation लेके क्या करोगे? You need some tips and tricks to implement it. So it has a motivation plus implementation. So I'll start with two stories. I'm not sure how many people have heard it, but story ये है कि कोई कंपनी है, let's assume it's a Puma company. उनको नई ब्रांच खोलनी थी अफ्रीका में, so उन्होंने 2 सेल्समैन वहां पे भेजे. वहां पे सेल्समैन ने काम किया 1-2 वीक. एक सेल्समैन बोल रहा है कि अरे यार मेरे को कैसी जगह पे भेज दिया है जहां पे लोगों के पास पहनने के लिए जूते ही नहीं है, तो मैं जूते कहां से बेचूंगा यहाँ पे. सो सही है, जेन्युइन प्रॉब्लम है. फिर दूसरा सेल्समैन था, उसने देखा कि यहाँ पर तो किसी के पास जूते नहीं है, तो उसने अपने बॉस को फोन किया और बोला कि तुमको पता है यहाँ पे बहुत एक अच्छी बात है कि यहाँ पे किसी के पास जूते नहीं है, तो हम सबको जूते बेच सकते हैं. सो दिस इज द टू स्टोरी वेयर यू हैव टू पर्सपेक्टिव. एक ये है कि जब आप कहीं पे जाते हो, यू जस्ट सी द प्रॉब्लम, एंड देन देयर इज अनदर पार्ट ऑफ इट वेयर यू सी द अपॉर्चुनिटी. And I call this basically the art of possibility. कि जहां पे भी आपकी जो भी आप सिचुएशन में हो, you think in a terms कि नहीं यहाँ पे कुछ possible है, you can do a positive impact. और ये मेरी लाइन नहीं है, there is already a book called The Art of Possibility. वहां पे बहुत सारे example you can read that. So my whole thing is before you start, you need to have a growth mindset here. आपका दिमाग खुला होना चाहिए कि मैं नई चीज सीख के इंप्लीमेंट करूंगा. ऐसा नहीं है कि खाली सुन के चले गए. सो दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग. एंड व्हाट एवर चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन योर करंट जॉब, कि एआई आ गया है, कोई बग आ गया है, फिक्स नहीं हो रहा है, या फिर आपको प्रोजेक्ट समझ में ही नहीं आ रहा था और आपको दे दिया है, राइट? ये सब चीज होता ही रहेगा, बट यू हैव टू थिंक इन अ पॉजिटिव वे कि चलो ठीक है, अब इससे मैं और क्या कर सकता हूँ, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर मी. सो ये टॉक बेसिकली 3 चीज में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज की डूइंग हार्ड थिंग्स, सेकेंड इज लाइक हाउ टू बी अ फ्लटर डेवलपर, एंड द थर्ड वन इज हाउ टू यूज एआई टूल इफेक्टिवली, जो कि लास्ट में थोड़ा डिटेल में इतना बात करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डूइंग हार्ड थिंग्स. अभी मैं यहाँ पे जो भी बोलूंगा ना, इट्स नॉट लाइक जैसे कि मैंने वो स्टार्टिंग में मोटिवेशन बोला वाला था कि ऐसा नहीं कि अरे आसान है, तुम कर लोगे, तुम्हारे अंदर है, तुम ये करोगे, वो नहीं है, ठीक है? ये जो चीज करनी है, इट्स रियली रियली हार्ड, एंड द रीजन व्हाई इट्स हार्ड, एंड इफ यू डू इट यू विल बी वे मोर, आप कुछ अलग बनोगे, क्योंकि हर कोई कर नहीं पाएगा ये.
फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक लिंक्डइन पे आई थिंक एक पोस्ट देखा था कि $100 स्टार्टअप, कि $100 में आप एक स्टार्टअप बना सकते हो, इट्स लाइक 8,000। किसी ने लिखा था कि चैट जीपीटी फ्री है, क्लाउडे फ्री है, डोमेन कोस्ट $10 है, सुपर बेस बैकएंड यूज कर लो, फ्लटर का यूएस यूज करो, मेटावेट एनालिटिक्स है, और तुमको अगर रिसर्च करनी है तो नोटबुक एलएलएम से रिसर्च करके तुम कर सकते हो। तो वो बोल रहा है कि ये लोग इतना सब कुछ है, तुमको बस स्टार्ट करना है, तुम कर लो। बट नाउ द क्वेश्चन इज, और इसकी एक बुक भी है, उसमें तुमको और 10 तरीके देखने हैं, तो वो भी देख सकते हो कि कैसे तुम मिनिमम, अगर तुम बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है तो तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो। यू जस्ट सी दैट एंड यू कैन गेट स्टार्टेड विद इट। बट द क्वेश्चन इज कि अगर इतना ही इजी है तो सब लोग क्यों नहीं कर रहे? किसी ने सोचा इसके बारे में, या किसी ने भी सोचा है कि ये इतना सब चीज फ्री है, ये है, लोग इतने स्टार्टअप क्यों नहीं बना रहे, या इतना एडवांस क्यों नहीं हो रहे? आई एम जस्ट आस्किंग, किसी के दिमाग में कोई थॉट है क्यों है ये? यस। It seems easy because the tools are free, but when you try to do everything on your own, then you will realize that you are not just, let's say, if I talk about Twitter, then you are just not targeting Twitter only. You have to think about the SEO, the leads, then how you will deliver, how you will market. So all these things is hard. Yeah. Yes. Yes. Maybe because of the tools, everyone can start, but it is tough to sustain. So not everyone can sustain. Okay. But I would say sustain is the second problem. The first is to build it. I mean, how do you say it is not sustainable? When you build something, then only you can say it's not sustainable. So it's like saying the same thing. It's like कि अगर आपको फिट बनना है, so just go to the gym. How difficult is that? अगर आपको हेल्दी रहना है, so just don't eat junk. अगर आपको थोड़ा mentally feel very overload, just reduce screen time. थोड़ा शांति रखना है तो just do the meditation. And like अच्छा इंसान बनना है तो just be kind. How many of you have seen reels around this, content around this? किसी ने देखा ही नहीं है? अच्छा ठीक है। सो बहुत इजी लगता है, 1 मिनट में देख लिया, इट्स इजी। बट प्रॉब्लम इज कि वी मिसअंडरस्टैंड थिंग्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर टूल्स, जैसे कि उन्होंने बोला कि ये सारे टूल्स है जो कि आप यूज करके यू कैन बिल्ड समथिंग और यू कैन यूज मे बी इफेक्टिवली। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि प्रॉब्लम टूल्स की ही है, कि चैट जीपीटी आउटपुट सही नहीं दे रहा है, क्लाउडे बेकार है, फिर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, और वो सारे मे बी सम लेवल पे होंगे, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल प्रॉब्लम। द एक्चुअल प्रॉब्लम इज नॉट टूल्स, इट्स बेसिकली योर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो खुद के अंदर हो रहा है, कि मैं कर तो सकता हूं लेकिन मुझे डर है कि अगर ये नहीं चला तो, अगर किसी को खराब लगा तो, ये बुरा लगा तो, अगर इससे ये सोचा तो, बेसिकली ऑल काइंड ऑफ फियर। सो दैट आर सम इंटरनल प्रॉब्लम्स यू हैव टू फिक्स फर्स्ट। सो जितने भी AI, फ्लटर, फ्रेमवर्क्स और जितनी की बातें हो रही हैं, बिफोर आप उन चीजों से डरो, पहले ये फिक्स करो कि आप डर क्यों रहे हो, राइट? एंड जस्ट फिक्स दैट, सो आप इन चीजों को और बेटर यूज कर सकते हो। सो या आई मीन इसीलिए बोला था थोड़ा मोटिवेशनल है, कोड तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो डूइंग हार्ड थिंग्स, नाउ डूइंग हार्ड थिंग्स ये बहुत ही बेसिक है, बट स्टिल पीपल डोंट डू इट, एंड आई एम गोइंग टू मेक माई पॉइंट इज just read a lot. If you are a knowledge worker basically in technology or like building code and something like that, read a lot. I don't mean reading like 5-minute, 2-minute blogs, but in a sense long form content where people have deep research on it, like books or any papers or those kind of things. Read a lot, as many as you can, whatever field you are in. And second is just write a lot. When you read it, you also need to write it, like initially shared, like with sharing your learning, collaborating and all that. It is all in the form of writing. Even if you are using AI, you have to write. So just write more whatever you are doing right now. And if you want to go little bit beyond, start to draw. I mean draw in a sense something, anything you can draw. होता है क्या है ना कि बहुत सी बार हमको फ्लो चार्ट बनाना होता है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बनाना होता है, हमको लगता है कि हमको ड्राइंग नहीं आती तो ये बनेगा ही नहीं somehow. कैसे कहाँ पे कनेक्ट होता है ये ऑन, वी फाइंड इट रियली डिफिकल्ट बिकॉज वी डोंट हैव दैट थिंकिंग इन आर कि ये चीजें कनेक्ट कैसी होती है. सो यू जस्ट नीड टू, आई मीन इसीलिए नो आई यूज द किड्स पिक्चर हियर बिकॉज दिस थिंग्स आर
taught a lot in the school in the beginning because these are really very important. और होता क्या है कि बच्चों ने पढ़ लिया उसके बाद खत्म, हमको नहीं करना, but we have to keep doing it. It's not just that कि ये हो गया बस मैंने कॉलेज खत्म कर लिया उसके बाद से बुक्स ही नहीं पढ़ूंगा, मैं ब्लॉग भी नहीं लिखूंगा, बहुत टाइम वेस्ट होता है and I don't draw. So the reason why I'm emphasizing more on this is because this makes your thinking a lot more organized. अभी क्या है ना, चीजें क्लटर रहती है कि यहाँ पे कुछ चल रहा है दिमाग में, यहाँ पे कुछ चल रहा है. इट्स नॉट ऑल टुगेदर. जब आप ज्यादा पढ़ते हो, लिखते हो एंड यू ड्रॉ ना, यू जस्ट मेक योर थिंकिंग वे मोर ऑर्गेनाइज्ड. एंड हमको ऑर्गेनाइज थिंकिंग क्यों चाहिए? ऑर्गेनाइज करना ही क्यों है? थिंकिंग का काम क्या है? सो इफ यू think about from an AI perspective, your output basically is depend on your quality of input, and your quality of input is depend on how specifically you have specified things. कितना ग्रैन्युलर लेवल पे आपने चीजें समझाई है. अब वो चीजें समझाने के लिए तुम्हारी पहले थिंकिंग क्लियर होनी चाहिए ना कि क्या करना है. कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि उनको पता है कि ये चीज बनानी है पर AI को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. ठीक है, मेरे साथ होता है कि मुझे कुछ भी समझाना है, मेरे दिमाग में है समहाउ कि हाँ ऐसा करना है, बट मैं उसको समझा नहीं पड़ा. अभी के लाइक आई एम नॉट दैट ओल्ड, बट जेनजी लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? यू नो व्हाट आई मीन. नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हो, मतलब समझाओ क्या है, क्योंकि उनके पास वर्ड्स नहीं है समझाने के लिए. इट्स जस्ट दैट यू नो बट नहीं पता. सो दैट्स द रीजन आई से दैट यू नीड टू रीड राइट एंड ड्रॉ इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज योर थिंकिंग सो यू कैन write things clearly. And because of that, of organized thinking, your AI output will be a lot better. कि आप जितना पढ़ोगे उतने आपके पास वर्ड्स हैं, you can use to explain it. अब 10 टाइप की पेंटिंग्स होती हैं, हमको पता ही नहीं कि उनको क्या अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं. हमको तो जिबली पता है, जिबली डाल दो, ठीक है. ऐसे 10-15 तरीके के और पेंटिंग्स भी हैं which you can use in your output to make your output a lot better. And that will make you differentiate from all other people we have out there. And this is also a big gap कि जो सीनियर है वो AI का यूज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं कंपेयर टू द जूनियर वन. बिकॉज जूनियर जो है वो अभी सीख रहे हैं, उनके पास उतनी वोकैबुलरी नहीं है, उनकी थिंकिंग इतनी क्लियर नहीं है कि वो समझ पाए और उसको समझा सके. सो दैट्स व्हाई आई एम्फसाइज मोर ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड ड्रॉइंग. अरे तो क्या बहु लवारी करी है यार, बहु लवारी का बस जस्ट शो मी द कोड. बट रुको जरा, ठीक है. अभी सेकंड पार्ट आएगा कि हाउ टू बिकम अ फ्लटर डेवलपर. एंड आई थिंक पूजा ने इंट्रोड्यूस किया था कि आई एम नॉट मोर ऑफ इन काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क थिंग, बट मोर ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, कि हाउ यू कैन बिकम अ बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपर. इस पे मैंने ज्यादा फोकस किया, इसलिए मैं ज्यादा अच्छा फ्लटर डेवलपर बन पाया. सो यू नीड टू थिंक फ्रॉम ऑल सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव की चीजें कैसे बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सके. सो उसके लिए मेरे पास आई एम सजेस्टिंग समथिंग सो यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड ऑफ. पहले तो ये समझना है कि हम चीजों की इंपॉर्टेंस कैसे रखते हैं. वी ट्रीट AI इज अ वेरी बिग चंक, देन वी थिंक कि हाँ उसके बाद फ्लटर आता है, फिर उसके बाद ठीक है मोबाइल डेवलपमेंट है, एंड्रॉइड और iOS होगा, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर है और फिर उसके बाद प्रॉब्लम है. सो ये इंपॉर्टेंस हायरार्की है ना, वही गलत है. एक्चुअली जो हायरार्की है ना वो इस तरह से होनी चाहिए कि वी नीड टू थिंक ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट, कि क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए एक्चुअली सॉफ्टवेयर चाहिए या नहीं चाहिए, किसी से बात होके ही सॉल्व हो सकती है. फिर वो सॉफ्टवेयर के अंदर मोबाइल चाहिए या वेब चाहिए, फिर मोबाइल में आता है यू नीड टू डिसाइड वेदर इट्स अ फ्लटर, एंड्रॉइड और iOS, और फिर उसमें तुमको ढूंढना है कि AI यूज करना है कि नहीं. यहां पे पूरा उल्टा ही होता है कि AI से शुरू करके फिर AI तो ले आया पर प्रॉब्लम तो क्या है पता नहीं. ठीक है, और ये बेसिक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है. हर किसी के अंदर भी जाओगे ना वो बोलेगा कि इंप्रूव योर कम्युनिकेशन, क्योंकि बाद में आपको इंसान से ही डील करनी है एट द एंड. सो आई वुड रादर सेज कि इफ यू आर अ जूनियर डेवलपर स्पीक अप. मेरे साथ हुआ था कि मैं एक पहली कंपनी में था, तो मेरे जो सीनियर थे ना वो उनको चीज कहने में डर लगती थी, उनको लगता था बॉस डांटेगा वगैरह, तो वो मुझे बोलते थे कि तू बोल दे, तो मैं बोल देता था और मुझे पता ही नहीं कि उनका एजेंडा क्या था. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे डांट तो पड़ती थी लेकिन मेरा बोलने का जो ऑप्शन था वो खुल गया. अब मैं खुल के बोल सकता था, वेदर इट्स अ राइट और रॉन्ग वो बात की बात है, लेकिन आई कैन स्टिल स्पीक अप. सो इफ यू आर अ जूनियर डेव इन योर इनिशियल करियर लाइक 1 to 4 or 3 years, जस्ट ट्राई टू स्पीक अप मोर. ऐसे चुपचाप मत बैठे रहो.
क्योंकि बोलने से क्या है ना, ट्रस्ट बनता है कि आप जितना बातें करते हो उसको लगता है कि हाँ यार ये बात तो सही कर रहा है, या फिर हाँ ठीक है ये गलत है पर ठीक है सही बोल रहा, ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो बिल्ड्स योर वोकैबुलरी मोर। आपको पता चलेगा कि सामने वाले बंदे को किस तरह से बात करनी है, उसको क्या भाषा समझ में आती है क्या नहीं। और ये रिच वोकैबुलरी का पार्ट आता है फ्रॉम रीडिंग से, कि आप जितना ज्यादा रीड करते हो यू जस्ट इंप्रूव योर वोकैबुलरी। और आई एम जस्ट think of more of a timeless software concept. I would suggest कि learn new programming every now and then. Even अभी AI के टाइम पे तो बहुत easy हो गया है कि अगर आप जावा आता है तो you just copy that code and say to the AI कि मुझे किसी और लैंग्वेज में बना के दो, so you can easily understand. There is a book which I would recommend, 7 languages in 7 weeks. वैसे होगा तो नहीं, लेकिन at least you can learn new 7 languages. UI framework, just think from a UI framework perspective like declarative pattern, क्योंकि अभी सारी चीजें ना declarative pattern की तरफ जा रही है। अगर आप React ले लो, Flutter ले लो, Jetpack Compose ले लो, Swift ले लो, सब जो है वो component based है और पूरा declarative ही हो गया। So you have to think in small UI chunks. अगर आप वो सोच पाते हो तो you can transfer your knowledge anywhere, कि आप React app भी बना सकते हो, Flutter में भी बना सकते हो, Android में बना सकते हो, Swift में भी बना सकते हो। डिबगिंग एंड टेस्टिंग, अब ये ऐसी चीज है ना कि किसी ने इतना ज्यादा लिखा नहीं है इसके बारे में, तो हमेशा हमको ऐसा लगता है कि ये कंप्यूटर की ही मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक नहीं है। और एक है बैकएंड, आई मीन दिस इज वेरी रियली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डू इन अ फ्रंट एंड। ट्राई टू लर्न एटलीस्ट सम काइंड ऑफ बैकएंड, हाउ डज इट वर्क। दिस विल आल्सो हेल्प यू टू एम्फसाइज विथ योर बैकएंड डेवलपर। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं ये डेटा नहीं ला सकता, ठीक है, तो वो कहीं दूर कहीं और डेटा कोई और टेबल पे होगा, क्वेरी करने में टाइम लगेगा, ऑल दैट स्टफ। सो ट्राई टू बिल्ड योर ओन सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दैट वर्क्स। सो उसके लिए लाइक देयर इज ऑलरेडी सुपरबेस जो कि पोस्टग्रेस पे चलता है, एंड यू कैन ऑल्सो यूज नोड, जावा स्प्रिंग बूट है एंड गोलैंग भी है। सो ये सब चीजें आप यूज करके ना एक अपना खुद का बैकएंड भी बना सकते हो, यू अंडरस्टैंड हाउ दैट वर्क्स। या कितना टाइम है, ठीक है। नाउ यू कैन चूज योर लर्निंग सोर्स। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई मीन इट कैन बी रॉन्ग, कि ये मैंने चार्ट बनाया है कि दिस इज हाउ योर लर्निंग सोर्स वर्सेज योर वैल्यू गेट्स। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रीटी मच न्यू एंड इफ यू यूज यूट्यूब देन इट्स वेरी हेल्पफुल, बट आफ्टर सर्टन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ना यूट्यूब भी उतना हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम इतनी सर्टन स्टेज पे हैं कि हमको जो चीज करनी है वो यूट्यूब पे नहीं है। सो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसकी वैल्यू डाउन होगी। ब्लॉग्स ऐसी चीज है कि जो कांस्टेंट है, मतलब जो हो रहा है वो अपडेट हो रहा है, जो हो रहा है वो अपडेट हो रहा है, तो वो सेम ही है, उससे उतना नहीं है। थर्ड है बुक्स, कि आपको इनिशियल ईयर्स में उसकी वैल्यू बहुत कम लगती है, उसको लगता है कि ये बहुत टाइम वेस्ट है, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ना उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपने वो सब चीजें सारी पढ़ी हुई है। और लास्ट है कि बिल्ड समथिंग योरसेल्फ। अगर आप खुद का ही कुछ प्रोडक्ट बनाते हो या खुद की ही चीज बनाते हो, सो वो कोई भी एक्सपीरियंस ले लो, कहीं पे भी हो, यू विल ऑलवेज लर्न अ लॉट। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग विथ एआई राइट नाउ, कि जो बेसिक काम है वो तो वो कर ही रहा है। नाउ वी नीड टू शिफ्ट मोर टुवर्ड्स प्रोडक्ट इंजीनियर वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो यू शुड नो अ प्रोडक्ट एंड टू एंड। नाउ हाउ डू यू नो दैट यू आर अ प्रोडक्ट इंजीनियर नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर? Yes. When you think about the user first and then about the framework, if the product is actually solving a problem, Yeah. that is when you become a product. Yeah. But I want to give one heuristic you can try in your current day-to-day job to verify whether you are a product engineer or software engineer. Try to have, if you have a meeting with your whole team, like a product team, designer team, try to give a suggestion which a design team thinks is more sensible, or try to give a suggestion which the business team from the revenue perspective thinks कि हाँ भाई ये जो बोल रहा है वो सही लग रहा है। So if that started to happen, no, that means you understand the product end to end, and then your value increases a lot. Now tips on using AI tools. मैं हमेशा पहले ये प्रिफर करता हूँ कि ठीक है क्या करना चाहिए उससे पहले पता होना चाहिए हाउ नॉट टू यूज एआई, क्योंकि नहीं पता होगा तो एटलीस्ट ब्लंडर नहीं होगा। आई मीन, सो दिस इज अ रियल स्क्रीनशॉट फ्रॉम अ मीटिंग वेयर
there were 50 people and everyone has their AI notes taker. अब हो क्या रहा है पता है कि लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहे, वो अपने AI बोट्स ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपने खुद नोट्स बना रहे हैं, फिर PM जाके जाता है, उनके सारे नोट्स को लेके समराइज करता है, फिर वो उनको भेजता है, फिर वो बोलते हैं कि इसको वापस एक्सपैंड करो. सो यही हो रहा है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है, बट नोट्स पे नोट्स भेजे जा रहे हैं सब एक दूसरे को, कोई पढ़ भी नहीं रहा है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि AI है मतलब यूज करना ऐसा जरूरी नहीं है, उसका वैल्यू भी होना चाहिए. और ये मैंने ट्राई किया था जिबली बनाने का, मेरा तो पूरा पता नहीं उसने क्या कर दिया. ठीक है. और फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू नो फ्रॉम AI. और आप जितने भी ऑनलाइन जितनी भी चीजें देखते हो, इट्स ऑल्सो वेरी टेम्पटिंग टू अस कि हम भी ये ट्राई करें कि एक कमांड बताऊंगा और वो पूरा प्रोडक्ट बना देगा. सो जस्ट डोंट ट्राई टू बिल्ड एवरीथिंग इन वन गो, कि एक ही कमांड में एक मैजिकल प्रॉम्प्ट लाऊंगा, एक 10-15 पॉइंट का वो डालूंगा, और व्हाट्सएप के जो 50-60 इंजीनियर्स बैठे हैं ना, उनको यूजलेस कर दूंगा मैं. ठीक है, ऐसा होता नहीं है. एक प्रॉम्प्ट से कभी भी पूरा नहीं बनता. एंड डोंट ट्राई फॉर डूइंग दैट. एंड आई विल गिव यू मोर सेंसिबल एग्जांपल. लेट्स से यू आर बिल्डिंग अ न्यू फीचर एंड लेट्स से इट विल टेक 1 hour. अब 1 hour लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली यू विल थिंक कि चलो AI से करवाते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट यू विल डू इज, लेट्स से यू हैव दिस फीचर, ये फीचर का इतना टाइम है. नाउ द 80%, स्टार्टिंग का जो 80% है ना, वो तो 5 मिनट में बन जाएगा, और तुम ही फिर जाके ट्वीट करोगे कि AI इज गोइंग टू रिप्लेस डेवलपर्स. फिर जो बाकी का 20% है, वो तुम करने जाओगे, वहां पे तुमको डीबगिंग और वो करने में ना 55 मिनट लग जाएंगे. तो एट द एंड तुम आए कहां पे, जो पहले हो रहा था वही, प्लस तुमने फालतू का जाके ट्वीट भी लिख दिया. सो माय पॉइंट इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज एक साथ बनाने जाओगे तो वो नहीं बनेगी. यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उसका टाइम भी कितना है. एक्चुअली यू नीड टू थिंक कि आपका वो टाइम बचा रहा है या नहीं बचा रहा. और ये मेरे साथ हो चुका है कि मैंने एक प्रॉम्प्ट में पूरा ऐप बना दिया, उसमें 2-3 चीज नहीं चल रही है, उसको डीबग करने में मेरे को 1 घंटा चला गया. सो जस्ट मेक श्योर कि आप एक चीज एक साथ नहीं बना, क्योंकि होता है क्या ना कि AI की फीलिंग्स है और एक्चुअल AI की एक्सपर्टीज है. अब ये मैंने डायग्राम बनाया है. ठीक है. अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, जो डिजाइनर और मैनेजर और एग्जीक्यूटिव प्लेस पे ना, वो बोल रहे हैं कि वाइट कोडिंग है, प्रॉम्प्टिंग है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, वो सारी चीजें हो जाएगी. उसके बाद एक जो आता है जो जूनियर डेव, जब वो AI यूज करता है तो उसको लगता है कि नहीं, ये तो खाली बॉयलर प्लेट है, मुझे गूगल सर्च नहीं करना पड़ता, यहां से कॉपी पेस्ट ही करना है, उतना ज्यादा भी वो नहीं है. और सीनियर जब आता है तो उसको लगता है कि हाँ, ये तो फैंसी ऑटो कंप्लीट ही है, और अगर मेरे को एक जगह से दूसरी जगह कुछ नॉलेज ट्रांसफर करना है तो वो इजीली हो जाता है. और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और जो ऑपरेटिंग सिस्टम और वो बना रहे हैं, वो तो बोलते हैं कि भाई ये सब फालतू है, 10% ही रियलिटी, 90% तो मार्केटिंग है. सो द रीजन इज कि जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती है ना, यू फील कि AI की नेसेसरी आपको कहां कहां पे. आई एम नॉट सेइंग कि उसकी जरूरत ही नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी इफेक्टिवली जरूरत कहां पे है. हर जगह पे यूज नहीं करना है उसको. और एक और कॉन्सेप्ट है अवॉइड संक कॉस्ट फैलेसी. कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है? ठीक है. इसका मतलब है कि किसी ने एक बोट बनाई है, उसके नीचे एक वेट लटका है. अब बोट है ना, डूब रही है. एक बोल रहा है कि इस वेट को हटा दो नहीं तो हम डूब जाएंगे. वो दूसरा बोल रहा है कि नहीं यार, हमने बहुत पैसे खर्च किए वो वेट लगाने के लिए, तो हम उसको हटा नहीं सकते. और ये जो वेट है ना, वो एक्चुअली AI जनरेटेड कोड है. सो आपने जब एक बार प्रॉम्प्ट दे दी, उसने 20 फाइल्स में चेंजेस कर दिया, आपको बोलेगा अरे यार कर दिया उसने, यार मत करो चेंज उसको, अब इसमें डिबग करते हैं. ठीक है. तो उसमें ज्यादा टाइम जाता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ऑलरेडी टाइम इन्वेस्ट हो चुका है, तो क्यों वापस रिवर्ट करना, चल रहा है उसको चलने दो. बट प्रॉब्लम ये होती है कि फिर उसमें हम घूमते ही रहते हैं, फिर और चेंजेस करेंगे, फिर और चेंजेस करेंगे, फिर और चेंजेस करेंगे, फिर पता नहीं क्या चेंजेस हुआ था. और जो लोग बिना गिट के AI यूज कर रहे हैं, उसको तो भगवान भाई. ठीक है. फिर आता है हाउ टू यूज AI इफेक्टिवली. अब डेवलपर को 2 चीज का सबसे ज्यादा डर होता है, डॉक्यूमेंटेशन और टेस्टिंग. अब ये करने में पता नहीं हमको मौत आ जाती है कि नहीं करना, ये मैं करूंगा ही नहीं, पूरा फीचर बना दूंगा लेकिन ये नहीं कर.
अब एआई के टाइम में ना दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, क्योंकि एआई को ना डॉक्यूमेंटेशन चाहिए एक गार्ड रेल की तरह कि इसके बाहर नहीं जाना है तुमको, ये हमने लाइन ड्रॉ की है, इसके बाहर नहीं जाना है। एंड टेस्टिंग मेक श्योर कि तुम ये गार्ड रेल में जो चेंजेस कर रहे हो ना वो कोई चीज ब्रेक नहीं करे। सो बेसिकली योर डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स एज अ नेविगेटर एआई के लिए कि तुमको यहाँ चीजें करनी है, और टेस्टिंग जो है वो बोलेगी कि हाँ तुम सही कर रहे हो। सो यू नीड टू लर्न दिस टू न्यू थिंग्स इफ यू डोंट नो, एंड दिस इज रियली नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ एआई। उसके बाद आती है कि स्पेक फाइल, कि आप स्पेक फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। कर्सर कितने लोग यूज करते हैं? ठीक है, सो ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग को पता ही होगा कि जब आपका ये पूरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर ना आप एक डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट कर दो, फोल्डर जिसमें आपके सारे स्पेसिफिकेशन हो, जिसकी मैंने बात की कि डॉक्यूमेंटेशन, कि आप जो भी डॉक्यूमेंट कर रहे हो उसमें डाल दो कि आपकी टीम के आर्किटेक्चर गाइडलाइंस क्या है, डिजाइन सिस्टम क्या है, एज अ ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट। और जब भी प्रॉम्प्ट करो ना उस प्रॉम्प्ट में उस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया करो कि हाँ मेरे को ये फॉलो करके आप करो, ये फॉलो करके आप करो। क्योंकि जब कभी भी डिजाइन बनाते हैं ना तो वो क्या करता है कि हर चीज हार्ड कोडेड कर देता है। सो इट्स वेरी हार्ड टू चेंज अ कलर। अगर किसी ने एआई ने कोई आउटपुट जनरेट किया, उसका ब्लू कलर है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा फिगर आउट करने के लिए ब्लू को कलर को विदाउट प्रॉम्प्टिंग कोड में जाके चेंज कैसे करूं, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं हार्ड कोडेड कर दिया है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि वो डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करे ताकि चीजें आजू बाजू बाहर ना जाए। फिर आई गेस अगर कर्सर यूज किया है तो इट्स वे मोर ऑब्वियस कि कर्सर रूल्स आता है, जिसमें यू कैन क्रिएट अ कर्सर रूल फाइल एंड देन यू कैन राइट ऑल दोस कर्सर रूल। अब ये रूल्स लिखने के लिए ना दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच आई हैव शेयर्ड यू अर्लियर, यू नीड टू रीड अ लॉट, यू नीड टू राइट अ लॉट। अगर आप ज्यादा रीड करोगे यू नो कि हाउ टू राइट दिस रूल्स, एंड इफ यू राइट मोर यू विल बी मोर प्रिसाइज ऑन डिफाइनिंग दोस रूल, तो आपका आउटपुट उतना ही बेटर होगा। और ये बहुत सारी डायरेक्टरीज है, बहुत से लोगों ने कर्सर रूल डाल के रखे, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गेट दैट, और फिर अपने प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में यू हैव टू पुट इट देयर। और ये मैंने आई गेस किसी और से सीखा था कि जब आप प्रॉम्प्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, प्रॉम्प्ट इज नॉट पार्ट ऑफ अ कोड, राइट? सो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। टू मेक इट वे मोर फास्टर व्हाट आई यूज इज ऑडियो ट्रांसक्राइब। आई एम नॉट श्योर इट विल प्ले, so you can use a whisper or any audio tool. It will take whatever you are saying, it convert it into text and it will directly add it to the prompt यहाँ पे। So अगर आपको लिखने में भी like you are feeling कि नहीं थोड़ा टाइम लग रहा है, you can use this kind of tricks to make your flow a lot faster। और जब आप खुद बोलते हो ना तब आपको क्लियर होता है कि थिंग्स मुझे ऐसी करनी है या नहीं करनी। So you can just directly speak and then you can take that as an input here. Now, I mean this is almost over. Now you might be thinking कि अभी फ्यूचर क्या है, AI का फ्यूचर क्या है, कि क्या होगा, मैं इसको सीखूं नहीं सीखूं। So इसकी एक सिंपल स्टोरी है कि कोई एक बहुत ही बड़ा टीचर था, तो उसकी उसकी मतलब आखिरी टाइम था, तो उसने सारे स्टूडेंट को बुलाया। तो जितने भी सीनियर स्टूडेंट्स थे, जो सबसे ज्यादा सीनियर है वो आगे, फिर उसके बाद और सबसे लास्ट में जूनियर डेव था, मतलब जूनियर बंदा था, ठीक है। तो वो लास्ट बेंच पे, तो सब उसके स्टूडेंट आए, उसको लगा कि टीचर्स है, लास्ट में जो भी बोलेगा बहुत ही कुछ अच्छा होगा कि हम उस विजडम को ले लें। तो उसने बोला कि लाइफ इज लाइक अ रिवर, मतलब जिंदगी एक नदी की तरह है, मतलब बहती जाती है। तो सीनियर ने बोला कि हाँ ये बोल रहा है कि लाइफ इज लाइक ए रिवर, बहती जाती है। फिर उसने बाजू वाले को बोला, फिर उसने तीसरे वाले को, फिर चौथे वाले को बोला, फिर लास्ट में जो जूनियर डेव था उसको बोला कि लाइफ इज लाइक ए रिवर, वो बहती जाती है। तो जूनियर डेव बोल रहा है कि बट क्यों, क्यों लाइफ नदी की तरह ही है, मतलब क्यों ऐसे बह रही? तो बोल रहा है कि हाँ ठीक है। तो उसने वापस पूछा क्यों, और फिर यहाँ पे टीचर को आके बोलते हैं बट क्यों ऐसा? तो टीचर सोच के बोल रहा है कि हाँ सही है, नदी नहीं है, शायद पहाड़ है। सो द पॉइंट इज कि टीचर को भी नहीं पता है, ठीक है, कि फ्यूचर क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग इज कि जो भी बोल रहे हैं कि एआई ये होगा, रिप्लेस ये होगा, फ्यूचर इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो बोल रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत डाउट है, जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी डाउट है। सो एवरीवन इज अ डाउट, नथिंग इज लाइक फॉर श्योर कि ये चीज होगी। सो बेटर ये है कि ऑब्वियसली कि जो भी हम कर रहे हैं उस पर फोकस करें,
and whatever tools we have right now, usko use karke how we become a better software developer. So, I mean, yeah, to summarize it, more art of possibility, read and write, speak up, organize thinking, and from implementation perspective, avoid building in one go, sunk cost fallacy, documentation and testing, create spec file, audio transcribe, and yep, that's it. Thank you, everyone. So I am basically a freelancer. If you have anything related issues with a legacy code base, architect your app from this for your startup, improve code quality, train your existing prototype, you know who to contact, right? So, yep. And thank you. And also I run effective Flutter Dev classes on weekend. So if people who are experienced Flutter Dev and want to advance their skill set, they can join this class on weekend, and I'm just keeping 20% off for this event, so you can use this code. So, yep. Thank you. And if we have a time for questions, I don't know. No? No. Okay.